السلام علیکم۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں 27 اموات ہوئی ہیں اور 1063 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے بدھ کے روز کووڈ 19 کے 105 نئے کیسز کی خبر دی ہے اور اس کے ساتھ ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 36,473 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے مقابلے میں کورونا وائرس کے نئے مثبت کیسز کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ اسپین میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد برطانیہ اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو اسپین کے سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ ہانگ کانگ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ میں انسانوں پر کورونا ویکسین کے تجربات شروع کر دیے گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران بدھ سے مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا ہے۔ رواں برس حج کے لیے منتخب ہونے والے محدود افراد مکہ میں قرنطینہ میں وقت گزارنے کے بعد مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ عازمین حج نے بدھ کی صبح طواف کعبہ کیا، جس کے بعد وہ مسجد الحرام سے منا روانہ ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ طواف کعبہ کے دوران عازمین زمین پر لگائے گئے نشانات پر چل کر کعبے کا طواف کرتے رہے۔ رواں برس کا حج اس لیے بھی مختلف ہے کہ عازمین کو خانہ کعبہ کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ انتظامیہ نے خانہ کعبہ کے گرد حصار بنایا ہے، جس کے باعث لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ قائم رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسجد الحرام میں نشانات بھی لگائے گئے ہیں تاکہ عازمین کے درمیان فاصلہ قائم رہ سکے۔ عام طور پر ہر سال دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد افراد حج کے لیے سعودی عرب آتے ہیں۔ تاہم اس سال سعودی حکومت نے ملک کے اندر سے سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں پہلے سے موجود غیر ملکیوں میں سے صرف 1000 افراد کو حج کرنے کی اجازت دی ہے، جن کا انتخاب کئی ہفتے قبل ہی کر لیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں اس وقت کورونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 2,70,000 اور اموات کی تعداد 2,0800 ہے۔ پاکستان میں پارلیمان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی تکمیل دیے گئے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے انسدادی دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل ایکٹ 1948 میں ترمیم کے بلز کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے لیے مفاہمت کی کوششیں ناکام رہیں اور قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے دوران اپوزیشن کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا اور ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے راجہ خرم نواز کہتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہونے سے FATF کی گرے لسٹ سے باہر آنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی کارروائیاں عالمی سطح پر بھی موضوع بحث بننا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی ادارہ برائے امن نے پاکستان اور بھارت میں عدم برداشت پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے معاشرے میں رواداری ختم ہوگی، جبکہ پاکستانی ماہرین کے مطابق متنازع قانون سازی سے ملک بھر میں تحمل اور بردباری ختم ہوگی اور عدم برداشت کے رجحانات فروغ پائیں گے۔ پنجاب اسمبلی نے گزشتہ ہفتے تحفظ بنیاد اسلام کے عنوان سے ایک مسودہ قانون کثرت رائے سے منظور کر لیا تھا، جس میں دین اسلام، پیغمبر اسلام اور دیگر اہم مذہبی شخصیات کی عزت و ناموس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ بل کی منظوری کے بعد نہ صرف پاکستان میں اس پر بحث جاری ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی بعض حلقوں کی جانب سے اس بل کی منظوری پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے شیعہ علماء کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے اعتراضات دور کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے انتہائی حساس
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक अदालत के अंदर मुसल्लह शख्स ने पिस्तौल से फायरिंग करके एक जेर हिरासत मुलजिम को हलाक कर दिया। जेर हिरासत मुलजिम ताहिर अहमद नसीम पर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज था और मुकदमे की समाअत के दौरान जज के सामने मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके मुबैना मुलजिम को हलाक कर दिया। फायरिंग करने वाले शख्स को मौके पर गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के सेनेट ने गुज़श्ता दिनों कश्मीरी आज़ादी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी को मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजने के लिए एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद में, जिसे सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश किया था, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में बनने वाली यूनिवर्सिटी को 91 साला कश्मीरी लीडर के नाम से मौसूम और उनकी जिद्दोजहद को मुल्क के तालीमी निसाब में शामिल करने की भी सिफारिश की गई है। भारत में अगरचे हुकूमती सतह पर पाकिस्तान के ऐवान बाला के इस फैसले पर ताहाल किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया है। हुक्मरान जमा भारतीय जनता पार्टी के बाज़ अरकान ने इसे उनके बकौल नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अलहदगी पसंदी की तहरीक में शामिल अफराद और दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने की पाकिस्तान की एक दानिस्ता कोशिश करार दिया है। ताहम खुद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेनेट में पास की गई करारदाद का मजमूई तौर पर खैर मकदम किया गया है। आलमी मार्केट की तरह पाकिस्तानी मार्केट में भी सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत 1,22,000 रुपये की तारीखी सतह पर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन माहिरीन और सोने का कारोबार करने वालों का कहना है कि क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से सोने की ख़रीदारी मुतवस्सित और गरीब तबके की पहुंच से दूर है। ताहम इंतहाई मालदार लोग अपनी दौलत छुपाने के लिए अब भी सोना खरीद रहे हैं ताकि वो टैक्सेस से बच सकें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरोस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बुध को एक ट्वीट में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के बकौल वो काफ़ी अरसे से मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे थे, सिर्फ कोरोना पर काबू पाने का इंतज़ार था। उनका कहना था कि वो 1.5 साल से पूरे खुलूस और ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। उधर मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एदरूस ने कहा कि अवामी मफाद की खातिर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भेजे जाने वाले इस्तीफ़े में तानिया ने मज़ीद लिखा है कि वो पाकिस्तान में खिदमत के जज्बे से आई थी, लेकिन उनकी कैनेडियन शहरियत के हवाले से बहुत बातें की गईं। उनका कहना था कि वो बग़ैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखेंगी। वो हमेशा पाकिस्तानी थीं और पाकिस्तानी रहेंगी। तालिबान की तरफ से ईद उल अज़हा के मौके पर 3 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि मज़ीद कैदियों की रिहाई और पुरतशद्दुद हमलों में कमी से इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। काबुल में मौजूद अमरीकी सिफारतखाने, नेटो, यूरोपियन यूनियन और अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के आला मुज़ाकरातकार ज़ल्म खलीलज़ाद ने भी तालिबान की तरफ से आर्जी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। अफ़गान सदर के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने तालिबान के ऐलान को सराहते हुए कहा है कि ये एक अहम इक़दाम है, ताहम अफ़गान अवाम मुस्तकिल जंगबंदी और अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन बातचीत के ख़्वाहां हैं। तर्जुमान ने कहा कि सदर अशरफ गनी ने भी अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 रोज़ा जंगबंदी और तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दिया है। सदर गनी ने इस ऐलान से चंद घंटे कबल काबुल में आला हुक्काम से खिताब करते हुए हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के 1 हफ्ते के अंदर आगाज़ का इशारा दिया था। उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत तालिबान के तमाम 5,000 कैदियों की रिहाई जल्द मुकम्मल कर लेगी, जिसके बाद उसे तवक्को है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात 1 हफ्ते में शुरू हो सकेंगे। अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहिमत ज़ल्म खलीलज़ाद ने बुध को एक ट्वीट में कहा कि अमरीका तालिबान और अफ़गान हुकूमत के जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर अफ़गानिस्तान में
मगरबी फौजों के इत्तेहाद नेटो के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर, अमरीकी सफ़ीर रोज विल्सन और वो अफगान अवाम के लिए ईद की पुरअमन छुट्टियों के ख़्वाह हैं। ज़ल्म खलीजात का कहना था कि अमरीका की ख्वाहिश है कि ये ईद तमाम अफगान अवाम को करीब लाने और देरपा अमन का बाइस बने। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम की खिदमत करती रहें और उनकी इस कोशिश के मशकूर हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि ईद के मौके पर तमाम जंगजुओं को हिदायत की गई है कि वो कोई ऑपरेशन न करें ताकि 3 रोज़ तक अफगान अवाम ईद की खुशियां मना सकें। ताहम ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खबरदार किया कि अगर अफगान फोर्सेस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर आतिफ मशाल ने एक बार फिर ज़ाती वजूहात की बिना पर सदर अशरफ गनी को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। एक ट्वीट में इस्तीफ़ा का मतन जारी करते हुए उन्होंने आला तालीम के हुसूल को एक वजह करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो इससे कबल 19 दिसंबर और 15 जुलाई को भी इस्तीफ़ा पेश कर चुके हैं, ताहम सदारती दफ्तर ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। अफगानिस्तान के आइन की रूह से सदर खुद बैरूनी ममालिक में सफ़ीरों का तकर्रुर करते हैं। अमरीकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने अमरीका के कई शहरों में जारी बदअमनी के वाक़यात के जवाब में कानून नाफिज करने वाले विफाकी इदारों के सख्त इक़दामात का दिफा किया है। वो अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी के सामने पेश होकर पहली मर्तबा अपने इक़दामात का दिफा कर रहे थे। विलियम बर ने कहा कि मुतशद्दिद बलवाई और इंतशार फैलाने वालों ने मिनियापोलिस की पुलिस के ज़ेर हिरासत जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के नतीजे में शुरू होने वाले जायज़ मुजाहिरों को हाईजैक कर लिया। विलियम बर ने कमेटी के अरकान को बताया कि बेताबी से इंतज़ार किए जाने वाले इंतखाबी साल में रियासत ओरिगन के शहर पोर्टलैंड और दीगर शहरों में तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा होने का जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम उनका कहना था कि जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत दहला देने वाला वाक़या था, जिसके नतीजे में अमरीका में अफ्रीकी अमरीकियों और कानून नाफिज करने वालों के दरमियान ताल्लुकात पर कौमी सतह पर ज़रूरी नज़र डालने की ज़रूरत महसूस की गई। 18 माह पहले अपना मनसब संभालने के बाद विलियम बर पहली मर्तबा ऐवान की जुडिशरी कमेटी के सामने पेश हुए। अमरीका के सदारती इंतखाबात में 100 दिन से भी कम रह गए हैं। इंतखाबी गहमा गहमी कोरोना वायरस की वजह से मान पड़ी हुई है। ऐसे में सदर ट्रंप और उनके सदारती हरीफ जो बाइडन के दरमियान पहले सदारती मुबाहिसे का मकाम तब्दील कर दिया गया है। पीर के रोज़ सदारती मुबाहिसे के कमीशन ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से ये मुबाहिसा 29 सितंबर को इंडियाना की नॉटरडेम यूनिवर्सिटी के बजाय क्लीवलैंड ओहायो में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज़ाद अदालती पैनल ने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर 3 साल की मुअत्तली की सज़ा पाने वाले क्रिकेटर उमर अकमल की सज़ा कम करके 1.5 साल कर दी है। पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने बुध को उमर अकमल की सज़ा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया। इस मौके पर उमर अकमल भी मौजूद थे। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और यूट्यूब पर हमारा ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।